جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو روہیل اور اس کی بیوی کا خیال آیا۔ اسے تو اس نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیض کے ساتھ میرون چوڑی دار پجامہ اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سہریش اور ثنا عابدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ارم، سونیا اور تائی امی لاؤنج میں تھے۔ روہیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیض کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھنگرالے مگر بھوری سنہری سٹریکنگ میں ڈائی کروا رکھے تھے اس نے اپنے بال۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کی ایفرو امریکن لگتی تھی۔ رنگت گندمی، رخسار کی ہڈیاں اور اونچی بھویں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکی لڑکیوں کی طرح فیس ویکسنگ کروانے کے باعث جیسے چھلی ہوئی سی لگتی ہے۔ لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ حیا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے وہ اچھی لگی تھی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اس نے معذرت کرتے ہوئے ایک نظر اپنی اماں پہ ڈالی۔ اماں اتنی نارمل کیسے تھیں کہ ابا اور اماں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے، نہ تو انداز میں رکھائی تھی نہ ہی والہانہ گرم جوشی، بس نارمل سوبر سا انداز۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی، اس سے بیٹھا ہی نہیں گیا، عجیب بے چینی سی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن اور لاؤنج کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی تھی، سو اسے دور سے پپو کام کرتی دکھائی دے گی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹی۔ وہی جہاں والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ نتاشا سے مل لی؟ پپو نے دور لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی خواتین کی جانب اشارہ کر وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے؟ سرگوشی میں پوچھتے ہوئے بظاہر چیزیں اٹھا اٹھا کر پپو کو دے رہی تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کا کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا، پپو نے کہا تھا، کیونکہ پپو کچھ سمجھ گئی تھی۔ صحیح، مگر روہیل اچانک آ گیا، ابا کا ری ایکشن کیا تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے اثر سے ذرا نکلی تھی اور اس طرف اس کا خیال آیا۔ وہ اسی لیے بتائے بغیر آیا ہے، بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روہیل نے معافی مانگ لی اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا، سو بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی گئی، اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہو گیا؟ یاد ہے نا اس شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے پپو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی؟ اب وہ شادی کر ہی چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان بھی کر چکا ہے، تو بس بات ختم۔ روہیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پلوٹی کی اولاد۔ اوون کا ٹائم سیٹ کر کے وہ اس کی طرف پلٹی تو ان کے چہرے پہ ایک تکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے حیا، اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلی پہ لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ گیا تھا۔ پپو اب کاؤنٹر کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے بہت سارے آنسو اپنے اندر اتارے تھے اور چہرے پہ ظاہری بشاشت لاتے ہوئے ان کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں اور نور بانو کدھر ہے؟ وہ ڈرائنگ روم میں بھائی کو چائے دینے گئی تھی، میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں۔ کھانے کا کام عورت کو کرنا چاہیے نا، تاکہ اس میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ بھی رہے۔ تو نور بانو ہے نا پپو؟ بیٹا عورت کے ہاتھ کا ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے۔ نور بانو کے بنائے گئے کھانوں میں اس کے اپنے بچوں کا ذائقہ آئے گا، مگر اس کے مالکوں کو نہیں۔ وہ جہاں کی ماں تھی اور ان سے بحث کون کرتا؟ وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ درمیان میں ایک دفعہ ابا اٹھ کر کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا، الہی بخش کہہ رہا تھا ولید نے تمہارا راستہ روکا تھا؟ ولید کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے، جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ جی وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم پہ ذاتی حملہ کر سکتا ہے۔ ہاں میں اس کو دیکھ لوں گا، اب اکیلے مت باہر جانا۔ اب کیا فائدہ؟ ویسے تو کل اس نے استنبول چلے ہی جانا ہے۔ کھانے کے بعد ثنا نے اس سے کہا کہ وہ ترکی کی تصاویر دکھائے سب کو۔ وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف آئی تو ارم ساتھ آ گئے۔ اس کے سر میں درد تھا، وہ ذرا لیٹنا چاہتی تھی۔ تم نے دیکھا
आबदा चची और सहरिश कैसे पप्पो के आगे पीछे घूम रही हैं। इसके बेड पे तकिया दुरुस्त करते हुए लेटती हुई रम बोली थी। सहरिश वाकई सारा वक्त सिर्फ पप्पो से बातचीत करती रही, जैसे मुझे इनकी परवाह है ना। वो शाने उचकाकर लैपटॉप उठाकर बाहर आ गई। जब वो लैपटॉप मेज पे रखे अपनी साथ बैठी सना को तस्वीर दिखा रही थी तो नताशा सना के दूसरी जानिब सिंगल सोफे पे बैठी थी। वो ज्यादा देर तक खामोश रही, बस किसी बात का जवाब देती, कभी मुस्कुरा देती और कभी अमरीकियों के मखसूस अंदाज में नखरे से शाने झुका देती। 1 मिनट पीछे करना। वो बयूक अदा की अपनी और डीजे की तस्वीर आगे करती जा रही थी जब इसने नताशा को सीधे होते हुए देखा। वो बेख्तियार रुकी, मुड़कर नताशा को देखा, फिर तस्वीर पीछे की। वो डीजे थी। अदा के बाजार का मंजर, उकप में जहाँ खड़ा बग्गी बांध से बात कर रहा था। वो बग्गी की सवारी से चंद मिनट कबल का फोटो था। वो तस्वीरें नहीं बनवाता था मगर इत्तेफाक से इस तस्वीर में वो नजर आ गया। ये जहाँ है ना। लाउंज में बैठी तमाम तर खवातीन रुक कर इसे देखने लगी। वो जरा आगे होकर बैठी, मुस्कुराते हुए स्क्रीन को। तुम कैसे जानती हो? फातिमा ने छम्बे से पूछा। ये हमारे पास आया था एक दफा नाइट स्टे के लिए हमारी तरफ। बहुत स्वीट है ना। हाँ। हाया ने एक नजर बाकी सब पे डाली, फिर इस बात में हिला दिया। वो कितना स्वीट है, मुझसे बढ़कर कौन जानेगा। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम्हें याद रहा। पुप्पो मुस्कुराई। रोहेल से वो इन टच थी मगर नताशा से नहीं, सो इन्हें अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स आंटी, इसने बिलखुसूस बताया था कि वो रोहेल की बहन का शोहर है, तो मैं कैसे भूल सकती थी। सहरिश ने आबदा चची को देखा और आबदा चची ने साइमा चची को। चंद मुतबज्जिज निगाहों के तबादले और जैसे लम्हे भर को खामोशी छा गई। पहली बार इसको नताशा बहुत अच्छी लगी थी। वलीद की बातों से छाई कल्फत जरा कम हो गई थी। वो इन्हें बाकी तस्वीर दिखाने लगी। फिर जब लैपटॉप रखने कमरे में आई तो इरम इसके बेड पे लेटी, इसके मोबाइल को कान से लगाए दबी दबी वो सीधी आवाज में किससे बात कर रही थी। ये लड़की भी ना। हया ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। इरम इसे देखकर तेज से अलविदाई कलमात कहने लगी। प्लीज कॉल लॉग मत क्लियर करना, मेरे अहम नंबर जाया हो जाएंगे। उसने अभी कॉल काटी ही थी कि हया ने इसके हाथ से फोन ले लिया। इरम ने बगैर किसी शर्मिंदगी के फोन इसको वापस कर दिया और कमरे से बाहर निकल गई। हया ने कॉल लॉग चेक किया। इसी नंबर पे जो इसने अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज में महफूज कर रखा था। इरम ने आध घंटा बात की थी, 30 मिनट और 50 सेकंड। चूंकि नंबर फोन बुक में महफूज नहीं था, सो इरम को मिलाते मालूम ही नहीं हो सका कि ये नंबर इस फोन में पहले से दर्ज है। वो तासुब भरी गहरी सांस लेकर रह गई। ये लड़की पता नहीं क्या कर रही है। आयशी गुल ठीक कहती थी, अच्छी लड़कियां छुपे दोस्त नहीं बनाती। काश वो ये बात इरम को समझा सकती। वो वापस लाउंज में आई तो बातों का दौर वैसे ही चल रहा था। फिर साइमा ताई ने एकदम से मुखातिब होकर कहा कि जिहां की वापसी का क्या प्रोग्राम है हया? शायद ये जताना मकसूद था कि इसे जिहां की खबर नहीं है। इसने बहुत जब्त से गहरी सांस ली। सबीन फुफ्फो अभी उठकर किचन में गई थी। कल मैं इस्तांबुल जा रही हूँ ना, तो फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम डिसाइड होता है। तुम्हारी कब वापसी होगी? सरिश ने बहुत सादगी से पूछा। ऐसे लगा सब मिलकर इसकी तहकीक कर रहे हैं। कुछ कह नहीं सकती, जिहां के प्रोग्राम पे मुनस्सिर है। शायद हफ्ता लग जाए, फिर हम साथ ही वापस आए। इसके लहजे की मजबूती पे सब ने, हत्ता के फातिमा ने भी इसे बेख्तियार चौंक कर देखा। वो नजरअंदाज करके सना की तरफ मुतवज्जो हुई जो प्याली में पानी भर रही थी और अपने पर्स से सुर्ख गुलाबी और कासनी नेल पॉलिश की शीशियां निकालकर मेज पर रख रही थी। इसे मार्बल नेल पॉलिश लगानी थी और वो जानती थी कि हया से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। लगा कर दे रही हूँ मगर वजू करने से पहले धो लेना। सब अभी तक इसे देख रहे थे और वो बेनियाज सी होकर हर नेल पॉलिश का एक कतरा पानी में टपका रही थी। तीनों रंग बुलबुलों की सूरत में पानी की सतह पर तैर रहे थे। इसकी उम्मीदों और दावों जैसे बुलबुले। वो जानती थी कि वो सबसे बड़ी बात कह गई है। जहाँ टर्की में नहीं था और वो इसके साथ वापस नहीं आएगा, मगर वो इनको मजीद खुद पे हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। अब अंगूठा डालो। इसके कहने पे सना ने अंगूठा पानी में डबो कर निकाला तो नाखून पे 3 रंगों का मार्बल प्रिंट छप गया था। वाओ! सना 27 से अंगूठे को हर जाविये से देखने लगी और वो कुदरती सा डिजाइन था, बहुत खूबसूरत था। कुदरत के डिजाइन भी कितने खूबसूरत होते हैं ना, इंसान की डिजाइनिंग से भी ज्यादा खूबसूरत। रात देर से वो रोहेल के साथ ताया अब्बा की तरफ गई ताकि जाने से कबल इनसे मिल ले और तबीयत भी पूछ ले।
ताया अब्बा की पट्टी बंधी हुई थी और वो कदरे बेहतर लग रहे थे। तुम बहन भाइयों का भी आना जाना लगा रहता है, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा। वो बेड पे तकियों से टेक लगाकर नीम दराज बैठे थे। परसों अगर इसे लगा था कि वो पहले ताया फुरकान बन गए हैं तो वो गलत थी। वो कि सर्द मेहरी की दीवार गिर चुकी थी और वो नॉर्मल इससे बातचीत कर रहे थे, फिर भी पहले वाली बात नहीं थी। इसने अपने हिजाब से इनके जख्म को मरहम तो दिया था, ये बात जैसे पुरानी हो गई थी। फितरत कभी नहीं बदलती। और जिहां का क्या प्रोग्राम है? जिहां मेरे साथ ही वापस आएगा। ताया के जवाब में इसने जरा ऊंची आवाज में कहते हुए करीब बैठी ताई अम्मी को फिर से सुना। ताई को जैसे ये बात पसंद नहीं आई थी, उन्होंने रुख फेर लिया। वापसी पे दोनों घरों के दरमियान दरवाजा अबूर करते हुए रोहेल ने पूछा, साइमा ताई तो सुबह बता रही थी कि जी हाँ तुम्हारे बुरके की जिद की वजह से छोड़ कर गया। हया ने गहरी सांस लेती हुई दरमियानी दरवाजा लॉक किया और फिर रोहेल की तरफ मुड़ी। तुम्हारे एफएससी प्री इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स थे रोहेल? मेरे मार्क्स 991। क्यों? और जब तुम्हारे 991 नंबर आए थे तो साइमा ताई ने क्या कहा था? इस फेडरल बोर्ड वालों से पेपर्स गुम हो गए थे, सो उन्होंने रैंडमली मार्किंग करते हुए शीरी की तरह नंबर बांटने हैं। और इसी बात को खानदान वालों से सुनकर तुमने क्या कहा था? एक मिनट, मुझे तुम्हारे अल्फाज दोहराने दो। तुमने कहा था कि साइमा ताई इस दुनिया की सबसे झूठी खातून है। ओके ओके ओके, समझ गया। रोयल हंसते हुए सर झटक कर इसके साथ पोर्च की तरफ आगे बढ़ गया। 6 माह कबल इसने भयानक ख्वाब देखा था। इस वाहियात वीडियो की सीडी इसके घर पहुंच गई थी। एरम लाउंज में जमीन पर बैठी रो रही थी और तायाबा रोहेल सब वहां मौजूद थे। सब इससे सोचा कि रोहेल तो अमेरिका में है, फिर इधर कैसे आया? मगर अब रोहेल इधर आ गया था। इस भयानक मंजर के सारे किरदार यहाँ मौजूद थे। जब वो टर्की से वापस आएगी तो क्या इसका इस्तकबाल इस ख्वाब के जैसा होगा? इससे आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। इस्तंबुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गई थी। टॉक्सम का मुजस्समा, आज़ादी के पत्थरों का रंग, ट्यूलिप्स की महक, इस्तकलाल जदेसी में चलते लोग, सुभानची की मसनूई झील, हर शय पहले जैसी थी। बस डीजे नहीं थी, जिहां नहीं था। मगर इन दोनों का अक्स इस्तंबुल के हर गली कूचे और बास्फोरस के नीले जाग के हर बुलबुले में झिलमिला रहा था। इस शहर ने इसकी जिंदगी बदली थी और अब इस बदली हुई पूरी जिंदगी में वो इस शहर को कभी नहीं भूल सकती। बयूकदा की बंदरगाह से चंद कोस दूर वो पत्थरों के साहिल पे एक बड़े पत्थर पे बैठ गई। एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली में पड़े प्लेटिनियम बैंड को घुमाती समंदर को देख रही थी। परसों जब वो इस्तांबुल आई थी ना, तब से इसने अब तक वो जहाँ का हर नंबर मिला चुकी थी, मगर सब बंद थे। वॉइस मैसेजेस ने फिर नहीं छोड़ा। क्या कहे, अल्फाज ही खत्म हो गए थे। क्लियरेंस के तमाम मामलात इसकी तवक्को से जल्दी हल हो गए थे। वीजा इसने बढ़वा लिया था। पहले से लगा था कि वो देर से वापस आई है, मगर फलस्तीनी लड़के और इसराइली टाली भी अभी गए नहीं थे। इनकी आज रात की फ्लाइट थी और फ्रीडम फ्लोटेला ने जो दोस्ती तोड़ दी थी वो अब तक जुड़ नहीं पाई थी। सुबह दलार आने से कबल इसने मोतसम को फिर से अबाए के लिए शुक्रिया कहा था। वो जवाबन सिर्फ मुस्कुराया था। बिलाखिर आज शाम इनका टर्की में यादगार सेमेस्टर अख्ताम पजीर होने जा रहे हैं। खुद इसका क्या प्रोग्राम था वो अभी कुछ फैसला नहीं कर पाई थी। जहाँ लंदन में ही था और वो इधर जा नहीं सकती थी, और इसको लिए बगैर वो वापस जाना नहीं चाहती थी। क्या करे? एक लहर तैरती हुई इसके करीब आई और फिर वापस पलट गई। वो अपने ख्यालों से चौंकी। लहर इसके करीब एक छोटा सा सीप डाल गई थी। इसने सीप चुनते हुए उसको अरसा हो गया था। शायद उसने तर्क ही कर दिया था। खाली सीप खोलने से बड़ी मायूसी क्या होगी भला? मगर न जाने क्यों वो उठी और जरा आगे झुककर उसने सीप उठाया। दाएं पैर पे जोर पड़ने से अब इसे तकलीफ हो रही थी। सीप लेकर वो वापस बड़े पत्थर पे आ बैठी और दोनों हाथों से इसको उलट पलट कर देखा। सफेद सुरमई सीप जिस पर भूरी गुलाबी रगें बनी हुई थी। सीप गीला था और रेत के जरात इस पर लगे थे। इसने पर्स से टिश्यू निकाला, सीप को अच्छी तरह साफ किया, यहाँ तक कि ठंडा सख्त खोल चमकने लगा। वो फिर वहां से उठकर आई। पिकनिक के लिए दूर दूर तक टोलियों में बैठे सयाहों से इसने छुरी मिलने की तवक्को की थी, मगर एक ख्वांचा फरोश सामने आ गया। इसके पास चाकू था। हया ने इससे चाकू लिया और वहीं इसकी रेडी के साथ खड़े खड़े सीप को काटा। इसने तय कर लिया था ये इसकी जिंदगी का आखिरी सीप होगा। इसमें से या तो सफेद मोती निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, मगर इन दोनों मुमकिनात में जो भी हुआ
وہ دوبارہ کبھی سیپ نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیپ کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ آہستہ الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں جدا ہوتے گئے۔ وہ یکٹک اس کھلے سیپ کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا نا، اور یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔